Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya, and you are here watching detailed explanation of the textbooks for class 9th biology written by Dr. P.S. Verma and Dr. V.K. Agrawal. So in this series of videos, you are watching page by page description of these famous textbooks published by Ashant Publishing, and until now we have discussed 2 complete chapters of biology, and we are on to 3rd chapter, that is diversity of life forms. So we know already about the diverse life form that is around us. हम पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि जो इंटायर लाइफ फॉर्म्स हैं उनको 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। उन 5 किंगडम्स में से 4 किंगडम्स की बात हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे 5th, विच इज़ क्वाइट लार्ज एंड क्वाइट पॉपुलर अमंग अस, एंड इवन वी ऑल्सो बिलोंग टू दैट सेम किंगडम called Kingdom Animalia. तो इससे पहले कि हम Kingdom Animalia इस चैप्टर में शुरू करें, let me brief you about what animals are. So you might have witnessed around you a variety of organisms which are capable to locomote on land. You might have seen galloping horses. If you've been to oceans, you might have seen moving fish, the swarms or the schools of fishes underwater, or in the air you might have seen aerodynamically gliding bunches of birds. So life forms are everywhere. Animals जो हैं वो सब जगह आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, या फिर कई बार कुछ एक्सट्रीम एरियाज़ में भी, एक्सट्रीम कोल्ड में भी आप देख सकते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों पर जहाँ हर समय बर्फ़ रहती है वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड। पोलर एरियाज़ में जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी पोलर बेयर देखने को मिलते हैं। अंटार्कटिका में पेंगुइन्स देखने को मिलती हैं। सो देयर इज़ नो प्लेस लेफ्ट आउट वेयर एनिमल्स आर नॉट देयर। एनिमल्स हर जगह हैं। And these are characterized by one common thing. Animal एक चीज़ से बंधे हुए हैं, एक common feature इनके अंदर है, that is their heterotrophic mode of nutrition, which makes us different from rest of the 4 kingdoms of life. जो बाकी 4 किंगडम हैं लाइफ के, उनसे अलग हमें ये इसलिए बनाता है क्योंकि हमारे पास heterotrophic mode of nutrition है, and we as human being are also part of this. So let us start our discussion. एनिमल किंगडम का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सम पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी आर एट दिस पॉइंट डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम और किंगडम एनिमेलिया. So Kingdom Animalia, which belongs to a subgroup of Metazoa, that means multicellular organisms which are eukaryotic, that is characterized by different body features. यहाँ पर शुरू में कुछ body features बताए गए हैं जो animals में देखने को मिलते हैं. तो ये कुछ developmental terms हैं, कुछ basic terms हैं जो यहाँ बताए गए हैं, जैसे Eumetazoa यानी कि multicellular organisms जो हैं उनको categorize किया जाता है on the basis how many layers do they have in their embryos. जब embryo से organism बनते हैं तो उनमें कितनी layers होती हैं. अगर 2 लेयर्स हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, 3 लेयर्स हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, और कभी कभी उन 2 लेयर्स के बीच में एक मिडिल जेली लाइक लेयर भी हो जाती है, मीजोग्लिया. जबकि ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जैसे कि हम लोग जब एम्ब्रियोनिकली जब डेवलप होते हैं तो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से बनते हैं, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म और एक मेसोडर्म, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. Then another point of consideration in animal classification is their symmetry. Now what do you mean by symmetry? If you look at an organism and if it can be divided in 2 identical halves by cutting it through the middle, then it is called as bilateral symmetry. But if something is spherical, maybe like a football or any other ball, if you cut it in any plane, आप इसको किसी भी plane में cut कर दें, it can be divided in 2 identical halves. So that is called as radial symmetry. So some of the organisms are radially symmetrical, some of the organisms are bilaterally symmetrical, and in fact there can be a few organisms which will not be symmetrical at all, जो asymmetric होंगे.
So these are few basic points to be considered before we actually go into classification. So another thing is, the third thing is coelom or the body cavity. You know, we have the body parts which are hanging into a cavity. हमारे शरीर के अंदर भी एक खाली जगह, एक cavity होती है जो कुशन की तरह काम करती है, and that is called coelom. But not all the organisms are coelomate. Some are acoelomate, जिनके पास coelom नहीं होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ट्रू सीलोम होती है, जबकि कुछ में फॉल्स सीलोम यानी कि सीरो सीलोम भी प्रेजेंट रहती है. सो दैट इज येट अनदर क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स. सो कीप note of these three things: germinal layers, diploblastic, triploblastic, symmetry, bilateral and radial, and presence of coelom, true coelom, pseudocoelom or no coelom. So these becomes fundamental points for consideration when you are classifying animals, जब हम एनिमल को क्लासीफाई कर रहे होते हैं. तो अगर हम आगे चलेंगे तो अब एक एक करके हम कैटेगरीज देखेंगे. जो पूरा एनिमल किंगडम है उसको ट्रिवियली 11 अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है. देयर आर 11 टोटल फाइलम्स which have been grouped in animal kingdom as per this textbook. So first group is Porifera. पहला फाइलम जो है आउट ऑफ 11, 1 ऑफ 11. पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर में पोर्स होते हैं, जिनके शरीर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन्हें हम पोरीफेरा कहते हैं. और ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं जैसे आप कभी कभी अपना कार वॉश करने के लिए जो स्पॉन्ज यूज़ करते हो या मैट्रेस में जो स्पॉन्ज होता है, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को भी स्पॉन्ज बोला जाता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्ज एंड दे हैव सेसाइल नेचर, दैट मीन्स दे डू नॉट मूव मच. और यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स there are different examples of sponges. This one is called as Cycon, then Leucosolenoid, Hyalonema, Euplactella. कई सारे sponges हैं जो oceans में या fresh water में भी मिलते हैं, and they have one thing in common that they bear pore in their body. उनके शरीर में pores होते हैं. Some of them are even वेरी इंटरेस्टिंग. इनमें से कई दिखने में बहुत ही खूबसूरत और ऑर्नामेंटल वैल्यू के होते हैं. दे आर ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट एंड दे ऑल्सो हैव अ कमर्शियल वैल्यू. अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव कैरेक्टरिस्टिक सेल्स. इनके शरीर में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम कोएनोसाइट्स कहते हैं, और इनके पूरे शरीर में न्यूट्रिशन के लिए एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज वाटर कैनाल सिस्टम. सो वाटर कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक, प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, and another characteristic is presence of spicules in some of these sponges. कुछ कांटे जैसे सिलिकॉन के spicules sponges में present होते हैं. Then further sub classification into 3 classes, Calcarea, Hexactinellida and Demospongia has been provided here. तो ये तो बात थी सबसे primitive type of animals की, जो लगभग आपको plant जैसे ही लगेंगे because they cannot move and they don't have many features like modern day organisms. That is the first primitive class. Come to the next phylum. अगर हम अगले phylum की बात करें, that is Coelenterata. So the name Coelenterata comes from the fact that they have hollow gut. These organisms are characterized or represented by one model organism that you can see here. ये आपने शायद organism सुना भी होगा और हो सकता है कुछ movies में या कहीं देखा हो. कुछ लोगों ने हो सकता है real life में मरीन एक्वेरियम्स जो होते हैं उनमें देखा हो. यू कैन फाइंड इट मूविंग हेयर. आप इसको मूव करते हुए देख सकते हो. दिस इज जेलीफिश. सो दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू नेक्स्ट हायर टेक्सॉन ऑफ एनिमल्स. ये पोरीफर्स से थोड़ा एडवांस है, स्पॉन्जेस से थोड़ा एडवांस है, और ये ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसका नाम है सिलेंट्रेट. नाउ सिलेंट्रेट्स आर एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले होते हैं, और इनकी खासियत क्या होती है? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रोन. मतलब इनमें एनस नहीं है. दे डोंट हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल लाइक अस. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी कि वही कैविटी इनका स्टमक खाने का काम करती है और वही कैविटी इनका वेस्कुलर सिस्टम यानी कि गैसियस एक्सचेंज के लिए, लिक्विड के मूवमेंट के लिए हेल्प करती है. सो दैट इज कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन. इसलिए इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा कहते हैं. एंड इनमें एक और खास चीज़ होती है, दे हैव स्टिंजिंग सेल्स. जैसे मधुमक्खी में डंक होता है ना, वो जहर रहता है उसके अंदर, जब वो स्टिंग करती है तो पेन होता है. सो सिमिलरली दे ऑल्सो हैव स्टिंजिंग सेल्स
इनके अंदर ऐसी ही स्टिंजिंग सेल्स होती हैं जो अपने प्रे से इनको बचाने में मदद करती हैं, एंड दोज स्टिंजिंग सेल्स आर कॉल्ड एज निडोब्लास्ट और निमेडोसिस्ट। इसलिए इनका नाम सिलेंट्रेटा के साथ साथ नाइडेरिया भी है निडोब्लास्ट की वजह से। So they have lot of other features as well which you can read here, and then you will find that they have been divided into various classes, at least 3 classes you can see here: Hydrozoa, Scyphozoa and Anthozoa। ये 3 classes हैं सिलेंट्रेटा फाइलम की। और बहुत सारे organisms apart from जेलीफिश के अलावा आपने कई बार जो मरीन लाइफ है उसके वीडियोस में देखा होगा कि कोरल्स होते हैं समुद्र के अंदर, ऑल्दो दे आर एंडेंजर्ड एंड दे नीड प्रोटेक्शन, सो कोरल्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द सिलेंट्रेट्स। देन हाइड्रा इज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, स्मॉल एनिमल, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस particular class or phylum. Some of the pictures, representative pictures are provided here. यहाँ पर कुछ representative pictures आपको दी गई है। देखिए हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ऐसा लगता है कि लड़ाई में लड़ने जा रहा है ये कोई इंडिविजुअल। देन ऑरेलिया, मेट्रिडियम, पिनाचुला विच लुक्स लाइक फैन, एंड फंजिया। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ organisms which are actually coelentrates. Now what is common in coelentrates? That they will have stinging cells and they will have a common gastrovascular cavity called coelentron. So ये common चीज़ें हैं, बाकी इनके shape, appearance और organism के type अलग अलग हो सकते हैं। Now coming to next phylum, अगर हम अगले phylum में जाएं तो एक minor phylum है which was introduced much later. Earlier it was considered as a part of other groups, that is called as Ctenophora. Ctenophora is also called as comb jellies, as इनको comb jellies नाम से जाना जाता है। They have bilateral symmetry and they are triploblastic, यानी कि इनको बीच से कट करें तो 2 parts identical हो जाएंगे, और इनमें 3 germ layers होती हैं, साथ ही साथ इनमें tentacles भी होते हैं। लेकिन सबसे important खास बात इसमें यह है कि इसमें there are 8 longitudinal rows of ciliary comb plates। इनके अंदर comb plates होती हैं and they are 8 which are used mainly for the locomotion, so that characteristic of these organisms make them assembled into different phylum, which is also called as comb jellies. So comb jellies are having comb plates which are characteristic for their locomotion, and Ctenophora is one such example. Ctenophora is comb jellies का एक characteristic example है। अगर हम अगले phylum की बात करें, which is phylum number 4, that is Platyhelminthes. So let me remind you that after jellies, jellyfish and these early organisms, we now have another category of organisms collectively called as worms. पहले टाइम में जब क्लासिफिकेशन नहीं था तो हम एक जनरल नाम दे देते थे worms। आज भी हम कई चीज़ों को जब नहीं जानते तो बोल देते हैं कि कीड़े घूम रहे हैं, एंड कीड़े तो कोई भी वैरायटी के हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, दे माइट बिलोंग टू डिफरेंट फाइलम्स। सो वर्म इज़ अ जनरल टर्म, बट वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ है। वर्म्स एक्चुअली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे अर्ली डेज में। एक फ्लैट वर्म्स जिनकी बॉडी ऊपर से फ्लैट होती है, जैसे किसी ने उनको प्रेस कर दिया हो और 2 डायमेंशनल हो गए हो, और एक होते हैं राउंड जो स्फेरिकल हो। सो वी हैव फ्लैट वर्म्स एंड round worms as 2 different phylums of animal kingdom which are obviously higher than comb jellies. So one is Platyhelminthes, and these Platyhelminthes, since they are flat and they are worms, worm-like, so they have been kept in a separate class. Majority of these Platyhelminthes will be seen as parasites. One very popular example is tapeworm or Taenia solium. ये जो अनराइप पिग्स हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड है उनके थ्रू ह्यूमन की बॉडी में आ जाता है कभी कभी, और ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर ग्रो करता रहता है। इट इज़ लाइक दिस, यू कैन सी हियर, एक स्मॉल इसमें हेड है, ये कहीं बॉडी में अंदर हुक की तरह अटैच हो जाता है, और फिर इसके जो ये बॉडी पार्ट्स हैं ये ग्रो होते रहते हैं एक लंबे टेप की तरह, इसलिए इसको हम टेप वॉर्म भी कहते हैं। तो टेप वॉर्म के अलावा लिवर में रहने वाला एक इंसेक्ट है, एक हेलमिंथ है, एक वॉर्म है जिसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, तो ये भी एक पैरासाइट है। बट देर आर सम फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो विच आर नॉट पैरासाइट, सो दीज आर कॉल्ड एज फ्लैट ऑर्गेनिजम्स और प्लेटीहेलमिंथीज, and they have
बायलेटरल सिमेट्री, इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है एंड दे आर रिबन लाइक मोस्टली, ये रिबन की तरह होते हैं। तो ये हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप। इसके अंदर कई क्लासेस हैं, जैसे ट्यूबुलेरिया क्लास है एक। ट्यूबुलेरिया में देर आर सम फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्थेस लाइक डुगेशिया एंड प्लेनेरिया। ट्रिमेटोडा जो है इसके अंदर लिवर फ्लूक वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और सेस्टोडा जो क्लास है इसमें टेप वॉर्म जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है ये इसमें आता है, विच मेनली कम्स फ्रॉम pork, unripe pork, that's why it is also called as pork tapeworm. So this was all in the part 1 of this video of the detailed animal classification. Let me summarize what we have learned. There are total 11 phylums in the animal kingdom, and out of those 11 phylums we have talked about the first phylum that was called as Porifera, which was pore bearing or sponges. They were characterized by a water canal system in them. Then the second one was phylum which was characterizing jellyfish called Coelenterata or Cnidaria. Then the third phylum was of comb jellies जिनके ऊपर comb plates होती हैं। और चौथा phylum जिसकी हमने बात की that was Platyhelminthes, flat helminths या flatworms। कुछ और phylums अभी बचे हैं, उन सब की हम बात करेंगे इसी टॉपिक यानी कि डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड विल बी बैक वेरी सून विद फ्यू मोर वीडियोस ऑन द सेम बुक रिटन बाय PS वर्मा एंड VK अग्रवाल। सो these books are augmentary books published by S. Chand Publishing for your curriculum. If you are enjoying these videos, do like, share and subscribe. Inform about this to your friends and peers. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.